In my previous video, I have already discussed how to create blog using Gmail account. In this video, I am going to discuss what is meaning of basically blog and what are some basic parameters in blog. What is basically use of tabs and button in blog, that is basically inbuilt. In blog, you can also use third-party software and many more things. Now just I open blogger.com. Let's follow step by step to discussing about this. Now this is login page of your blogger. Now just provide your Gmail ID by using you have created your blog. Basically, if the Gmail account is already associated with a blogger, basically blogger is an inbuilt functionality of Gmail account, same as like YouTube. कहने का मतलब ये है कि अगर आपको YouTube अकाउंट क्रिएट करना है, ब्लॉगर अकाउंट क्रिएट करना है, तो कोई ज़रूरत नहीं है कोई नई ईमेल आईडी क्रिएट करने के लिए। अगर आपके पास ऑलरेडी एक जीमेल अकाउंट है, then you can log in YouTube and also you can log in your blog. It's very easy to create a blog या YouTube channel. In next video, sometimes we also discuss how to create YouTube channel. Now, this is basically a dashboard of your blogger or your blog you have created. This is your profile. जब भी आप ब्लॉग क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि आप प्रोफाइल नेम क्या रखना चाहते हैं, तो हमने वहाँ पर एंटर किया था प्रदीप यादव, मीन्स दैट इज ब्लॉगर प्रोफाइल। नाउ अगर आपको इसी आईडी में एक और ब्लॉग क्रिएट करना है, देन यू कैन क्लिक न्यू ब्लॉग, देन यू कैन क्रिएट आल्सो न्यू ब्लॉग। मतलब कहने में मतलब है एक ही आईडी से कई ब्लॉग क्रिएट किए जा सकते हैं। नाउ हियर शेयर नॉलेज, दिस इज बेसिकली नेम ऑफ योर ब्लॉग जो आपने ब्लॉग क्रिएट किया है। हियर यू कैन सी 7 पेज व्यू, इसका मतलब ये हुआ कि 7 टाइम्स आपका ब्लॉग ओपन हुआ है या यूजर द्वारा देखा गया। हियर इज रिटन 3 पोस्ट, मीन्स आपके ब्लॉग में 3 पोस्ट है। हियर इज लास्ट पब्लिश्ड, मीन्स 10 अक्टूबर को आपने लास्ट पब्लिश किया। हियर इज अ बटन दैट शोज क्रिएट न्यू पोस्ट, मीन्स अगर आपको नया पोस्ट क्रिएट करना है, देन यू कैन क्लिक दिस बटन, यू कैन क्रिएट न्यू पोस्ट। हियर बॉडी पोस्ट लिस्ट, बेसिकली जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी पोस्ट लिस्ट मिल जाएगा कि हाउ मेनी पोस्ट इज ऑलरेडी पब्लिश्ड। नाउ दिस इज बी ब्लॉग, जैसे आपने इस पर क्लिक किया दैट विल बी ओपन ए न्यू टैब एंड ब्लॉग। जस्ट क्लिक ऑन न्यू ब्लॉग, this is open blogger dashboard again. Now here you can see there many tabs and button. Now let's discuss one by one. Now let's discuss now. This is basically blogger symbol. Here from here you can create new post. You can see list of your old post. B blog, जैसे आप क्लिक किए नया टैब ओपन होगा, उसमें आपका ब्लॉग। हियर इज सेटिंग बटन, यू कैन सी मेनी ब्लॉगर ऑप्शन which is already present in blogger. This shows blogger profile. Now when you click on this new post, basically this will open a post editor. In post editor, basically you have to write your post. Suppose click on new post. Now this is post editor. There are many buttons.
you can see compose. This represent compose. When you click on HTML, basically this will show HTML. Here under Jido, here you can change your font size. You can set normal, medium, small, something like this. You can show your post, convert in bold, italic, underline. There are many functionality in Blogger. You can add your picture, a video, page mark, link. You can do everything in Blogger in a post. Now here you can see post title. आप अपने पोस्ट का क्या टाइटल रखना चाहते हो, यू कैन सेट हियर. सपोज मैं रखना चाहता हूँ कि वार बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. That will be title of blog. Here you can content, post related content. Now here is level. Level means क्या है कि आप सपोज आपने 50 पोस्ट किए, 50 पोस्ट को आप डिफरेंट लेवल में डिवाइड कर सकते हैं कि भाई इस लेवल के अंदर ये पोस्ट आना चाहिए, इस लेवल के अंदर ये पोस्ट आना चाहिए. सपोज मैंने 5 लेवल क्रिएट किए, मेक मनी ऑनलाइन, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो. हमने क्या किया, इस 50 पोस्ट को 3 लेवल में डिवाइड कर दिया. तो जैसे बेसिकली हम पर्टिकुलर लिंक पर क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड जितनी भी पोस्ट होंगे वो आपको अपीयर हो जाएंगे. तो बेसिकली ये क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है. यू कैन मेंशन लेवल यूजिंग कम. सपोज यहाँ यू कैन सी मेक मनी ऑनलाइन, माइक्रो प्रोसेसर, ऑलरेडी 2 लेवल हमने क्रिएट कर रखा है. तो जैसे हम मेक मनी ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड जितने पोस्ट होंगे आपके अपीयर हो जाएंगे. शेड्यूल बाय डिफ़ॉल्ट बेसिकली ऑटोमेटिक होता है. यू कैन सेट एंड डेट एंड टाइम टू post या publish your post. It will by default automatic होता है. Location you can set, option you can set कि मैं comment allow करना है कि नहीं करना है. So HTML something like this you can set. After giving title and content you have to publish your post ताकि हमारा कोई भी यूज़र है उस पोस्ट को देख सके. जब तक आप पोस्ट को पब्लिश नहीं करेंगे वो पोस्ट यूज़र को नहीं दिखेगा. तो आफ्टर राइटिंग योर पोस्ट यू हैव टू पब्लिश. सपोज आप अभी पब्लिश नहीं करना चाहते हैं तो जस्ट मेक इट सेव. क्या होगा कि आपका जो भी पोस्ट होगा वो सेव हो जाएगा. इन फ्यूचर आप जब चाहते हो आप उसको पब्लिश कर सकते हैं. नाउ गो बैक. नाउ सेकेंड थिंग इज पेज. इन ब्लॉग आपने देखा होगा बहुत से टैग होते हैं जैसे अबाउट मी, कॉन्टेक्ट मी, समथिंग फन एंड मस्टी टैग, माइक्रो प्रोसेसर टैग, माइक्रो कंट्रोलर. बेसिकली दे आर रिलेटेड टू ए पेज. So you can create different pages. As post you have to create page, just click on this page. Now up you can create new page, click on new page. This will be editor. अब आपका पेज का टाइटल क्या होगा, जैसे हमने अबाउट मी रखा, कॉन्टेक्ट मी रखा, माइक्रो प्रोसेसर रखा, समथिंग लाइक दिस. सपोज आई हैव रिटन माइक्रो प्रोसेसर. दिस इज माइक्रो प्रोसेसर पेज. नाउ हियर इज ऑप्शन, सेम थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. नाउ मेक इट पब्लिश. आपको क्या होगा, आपका पेज भी पब्लिक हो गया. अब देखिए यहाँ पर शो कर रहा है ऑल 2 मीन्स नंबर ऑफ पेजेस इज 2, पब्लिश पेजेस इज 2. तो बेसिकली नाउ दिस इज पब्लिश पेज. कमेंट. इन कमेंट बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई व्यूअर या यूजर आपके कमेंट करता है आपके किसी पोस्ट पे तो सारे हमारे जो पोस्ट होते हैं, जो भी हमारा कमेंट होता है सब इसमें अंदर नीचे आ जाता है. अब नाउ बेसिकली क्या होता है कि जैसे एक पोस्ट आएगा उसके साथ एक चेक बॉक्स आएगा. उस पेपर को आप क्या करना है, उस कमेंट को आप पब्लिश करना चाहते हैं लेकिन नहीं चाहते हैं. इट्स डिपेंड अपॉन यू. सपोज समवन हैज राइट कि दिस इज गुड पोस्ट, डेफिनेटली यू वांट टू पब्लिश, देन जस्ट चेक बॉक्स एंड पब्लिश. सपोज समवन लिखा कि दिस इज सो बैड पोस्ट, मे भी हो सकता है कि आप पब्लिश करना चाहें ना करना चाहें. इन केस यू कैन मेक इट स्पैम. नाउ नेक्स्ट इज स्टैट. स्टैट बेसिकली क्या होता है कि ये पूरी हिस्ट्री आपके ब्लॉग के बारे में बताता है कि आपके ब्लॉग को कितने लोगों ने ओपन किया, कितना पेज भी हुआ, कल कितना हुआ था, लास्ट मंथ में क्या हुआ, आज तक कितना हुआ. देयर इज अ टैब फॉलोअर्स कि हाउ मेनी पीपल फॉलोइंग योर ब्लॉग. तो बेसिकली यू कैन मैनेज या यू कैन ट्रैक
your page view source traffic source from where you can get such traffic source, which country, from which country you are getting source in that post. This is traffic source. You can get traffic source from here. Audience, from which country you are getting audience. In this case, from India, you are getting 5, United States 2. So basically, you can see everything here. Now, most important part is earning. बेसिकली देखिए, जब भी कोई ब्लॉग क्रिएट करता है तो आफ्टर सम टाइम he wants earn some money. AdSense is best source to earn money using blog या using YouTube channel. Now, जब भी आप कोई ब्लॉग क्रिएट करते हैं जिसकी सम क्राइटेरिया है टू फॉलो टू गेटिंग गूगल एडसेंस अप्रूवल. जैसे आपका गूगल एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है, यू कैन स्टार्ट अर्न मनी. बेसिकली गूगल एडसेंस करता क्या है, जैसे आपका ब्लॉग क्वालिफाई हो गया, दे विल प्रोवाइड सम एड्स ऑन योर ब्लॉग. जैसे कि यूजर उस एड्स पे क्लिक करता है, इस ब्लॉग एड को व्यू करता है, देन सम मनी विल बी जनरेट. उसमें से क्या होता है, कुछ पार्ट गूगल एडसेंस या गूगल आपको प्रोवाइड करता है. तो जैसे जैसे आपके यूजर बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे व्यूअर आपके बढ़ेंगे, यू कैन मेक गुड मनी. तो बेसिकली गूगल एडसेंस इज द बेस्ट सोर्स टू अर्न मनी यूजिंग ब्लॉग. नाउ इन दिस यू कैन बेसिकली पार्ट क्या होता है कि आपको ऑडियंस को ग्रो करना है. सपोज आपके व्यूअर 1000 आ गए, आप चाहते हैं 10,000 तक पहुँचे, उसके लिए आपको कुछ पैसे खर्च करने पड़ते हैं, गूगल एडवर्ड लेने पड़ते हैं, गूगल कीवर्ड लेने पड़ते हैं, आपको ऐड क्रिएट करना पड़ता है. उससे क्या होगा, जैसे जैसे ऐड डिस्प्ले होगा, मुझे क्लिक करेगा, नंबर ऑफ ऑडियंस आपकी बढ़ेगी. नाउ नेक्स्ट इज लेआउट. बेसिकली ये क्या होता है कि जो भी आपने ब्लॉग क्रिएट किया है, उस ब्लॉग का पूरा लेआउट शो करेगा. इन दिस नोवा हेडर क्रॉस कॉलम, यहाँ पर आप गैजेट ऐड कर सकते हैं, अबाउट मी, मतलब जिस टाइप वांट टू रिप्रेजेंट योर ब्लॉग यू कैन शो टू यूजर. आप हेडिंग चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, यू कैन डू एवरीथिंग इन ब्लॉग. नाउ टेम्पलेट, देयर आर वेरियस टेम्पलेट अवेलेबल इन ब्लॉग. यू कैन चूज योर टेम्पलेट, किस तरह के टेम्पलेट आप चाहते हैं, कैसा चाहते हैं, ले सकते हैं. सपोज देयर आर 2% कस्टमाइज रिटेंशन, जस्ट क्लिक ऑन कस्टमाइज. बेसिकली आपको ब्लॉग को कैसे कस्टमाइज करना है, सारे इसमें सेटिंग यू कैन सेट की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं ऑन ब्लॉग. तो यू कैन सेट योर कॉमन विथ, यू कैन सेट योर फॉन्ट ऑफ title, width of space, everything you can set in this person in template. In template there are two options, edit also customize. Same as that is for desktop, this is for mobile. For mobile you can also set this. तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि जब भी कुछ भी आप ब्लॉग में चेंज करने जाए, उसके पहले ध्यान रहे कि हम बैकअप और रिस्टोर करें. बेसिकली हम क्या करें, जब भी कुछ चेंज करने जाते हैं तो हम बैकअप और उसको रिस्टोर कर लेते हैं, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है देन यू कैन रिस्टोर पर्टिकुलर ब्लॉग. नाउ दिस इज ब्लॉग टेम्पलेट डिजाइन. इन दिस यू कैन सेलेक्ट एनी टेम्पलेट फ्रॉम हियर. देयर आर वेरियस टेम्पलेट. हियर इज सम ऑप्शन. Background, you can change your background ki which type of color want to show. Suppose I will click green, this will be converted in green. Okay, adjust width, you can set here from this of a blog या this of this screen कि कहाँ तक कहाँ आप शो करना चाहते हैं. एंड लेआउट, किस टाइप का लेआउट आप शो करना चाहते हो, हेडर, फुटर, समथिंग लाइक दिस. नाउ क्लिक ऑन एडवांस. दिस इज मेजर. इन एडवांस यू कैन चेंज योर पेज टेक्स्ट. फॉन्ट क्या होना चाहिए, इसकी विड्थ क्या होना चाहिए, इटैलिक होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए. यू कैन से देयर मेनी चेंजेस इन बैकग्राउंड्स. आउटर बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, ग्रीन बैकग्राउंड. नाउ सेटिंग अबाउट लिंक्स, ब्लॉग टाइटल. हियर फ्रॉम हियर यू कैन चेंज फॉन्ट
title, color, everything. Blog description. In this blog there will be any blog description. So अगर आपके ब्लॉग में ब्लॉग डिस्क्रिप्शन है then you can set every setting from his टैब टैक्स कैसे होने चाहिए, कैसे डिस्प्ले होने चाहिए, टैब्स फ्रॉम पोस्ट टाइटल, डेट हेडर, post footers. You can see this. After changing everything, you will have to click on apply blog. So all setting, all changes you have made, that will be applying a blog. Now your blog will be changed. So this is basically basic difference, basic description about blog. Now you can enjoy your blog by visiting this video. For any query, you can contact Agent through my website www.pradeepyadav.com, or by posting any comment in this video. Definitely I will be help to create a good blog. So now basically this is now in this page you can set comment on editing moderation. Basically this is show how many comments user have posted, कितने कमेंट ऐसे हैं जिनकी मॉडरेशन की ज़रूरत है. यहाँ पे दिखाएगा पब्लिश कमेंट, कितने आपने पब्लिक कमेंट को पब्लिश कर दिया है. दिस इज पेज बाय यूजर कि हाउ मेनी यूजर हैव सीन योर वेबसाइट या ब्लॉग टुडे, हाउ मेनी पोस्टेड यू हैव मेक इट, हाउ मेनी फॉलोअर्स विल फॉलो दिस ब्लॉग. इन सेटिंग you can there is various setting parameters. First one is basic. This is basic setting. Second is post comment and sharing setting. Something and this email setting, language or formatting setting, search news, other. So this is basically a short description about your blogger, your blog. So enjoy creating blog and enjoy blog.